making same graph again. Okay, so that is O X Y A B C and D. Here time, and it is velocity U and V. Okay, and it is time T. Okay, ये आपके पास पहले से बना हुआ होगा. So start second equation of motion. हेडिंग होगा आपका second equation of motion. बच्चों, as you know, the slope of VT graph gives acceleration. Gives acceleration. किसका? Given body के लिए. Similarly, one thing remember also, this graph make an area with time axis. And remember, this area is equal to the distance covered by the body. यानी कि बॉडी A से B तक, यानी कि उसकी स्पीड U से V तक चेंज होने पर, U से V चेंज होने पर उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? दिस डिस्टेंस इज measured by this area. Okay, so now Nilay, how can we determine or calculate the area of OABD? Sir, by breaking ODC and UA. ODCA in one rectangle and ACB in another triangle, and finding the areas Very nice. Very separately. good. So now, according to you, we have two idea. Sorry, you have one idea. Ki it is, if we split into two parts, so one part's like a triangle and second one is rectangle. But as you know, this is also a specific figure, geometrical. इसे हम क्या बोलते हैं? Trapezium. Okay, it is also trapezium, and we know that the formula of trapezium हम उसका यूज कर सकते हैं, लेकिन पहले आपकी बात मानते हैं. Okay, so we will calculate the area of OABD in two parts. First, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, और दोनों को जोड़ देंगे. जैसे आप जोड़ेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल डिस्टेंस of the body which is covered by the body to increase the speed from U to V. Okay, so लिखिएगा, from figure we can find the distance. We can find the distance traveled by the body. Distance traveled by the body in time small t. In time small t. So लिखिएगा,
distance traveled S is equal to distance traveled S is equal to area under velocity time graph. Area under velocity time graph. ठीक ना? S is equal to area of trapezium. कौन सा ट्रेपेजियम है? OABD. OABD. अब जैसा कि नीरज ने कहा था, we split this trapezium into two parts. तो लिखिए area of triangle ACB. Area of triangle ACB plus area of rectangle कितना है? OACD. Okay. Area of triangle ACB plus area of triangle OACD. Yes. Pranav Srivastava. What is the formula of area of triangle? Half into that into height. फिर से बोलो बेटा. Sir, half into base into height. Sir, half into base into height. Okay, half into base into height. Okay. Now area of rectangle OACD कितना होगा? L into B. Length into breadth. Length into breadth. बिल्कुल सही बात है. Length into breadth. Okay. So 1/2. प्यारे बच्चों, बेस कितना है इसका? AC. AC means AC कितना है? T. यहाँ जाएगा T. इंटू हाइट कितनी है? हाइट है BC. BC मतलब ये देखो बेटा, ये BC है, ये BC, ये. तो अगर इसमें से इसको माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा अपने को? V माइनस U प्लस लेंथ इंटू ब्रेड्थ. लेंथ कितनी है? ये दिया हुआ है T और ब्रेड्थ कितनी है? U. ठीक. 1/T इंटू V माइनस U. ये आ गया आपका. ओके. नाउ इसको थोड़ा सा मैं ऊपर से साफ कर रहा हूं. सो S इज इक्वल टू लिखिए UT प्लस, मैंने इस UT को पहले लिख दिया, 1/T2 इंटू T इंटू V माइनस U. S is equal to UT plus half into T into V minus U. अब से लिखिए
from first equation of motion. From first equation of motion क्या होती है, हम पढ़ चुके हैं, v is equal to u plus at. v is equal to u plus at हम पढ़ चुके हैं. So v minus u is equal to at. u को यहाँ ले जाओ. क्या करेंगे अब आप? Substitute the value of v minus u in above equation. Substitute the value of v minus u in above equation. So s is equal to ut plus 1 upon 2 into t. v minus u की वैल्यू कितनी है बच्चों? 80. यहाँ पर कितना आ जाएगा अपने को? 80. कितना आ गया? 80. अगले स्टेप में s इज इक्वल टू ut प्लस t इंटू टी टी स्क्वायर. सो 1 अपॉन 2 a t स्क्वायर. ये दिस इज second equation of motion. This is second equation of motion. समझ में आएगा? इस प्रकार से आप दूसरी यानी कि सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी कैलकुलेट कर सकते हो. यदि नोट कर लिया हो तो मुझे बता दीजिए. यस सर, कर लिया नोट. थैंक यू. चलिए अब इसे हम लोग साफ कर देते हैं. प्लीज कर दिया. अब क्या आएगा इसका? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. बच्चों हम फिर से उसी को अप्लाई करेंगे. फिर लिखिएगा फ्रॉम फिगर we can again find the distance traveled by the body. Distance traveled by a body during the period its velocity becomes u to v. Its velocity becomes u to v. So लिखिए distance traveled by body. Distance traveled by body S is equal to area under velocity time graph. ठीक. S is equal to area under velocity time graph. ओके. सेम फार्मूला क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ
trapezium OABD. Area of trapezium OABD. हाँ बच्चों, आप में से किसी को इसका फार्मूला पता है? ट्रेपेजियम में क्या होता है? Sir, Yeah. Half into h Sir, into half- sum of it into sum of parallel side. Half into half half. into height Into Height. sum of parallel side. Okay. Okay. Good. Very nice. Very nice. इसमें बेटा ये हाइट को न बोलते हुए यदि हम इसको ये बोलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड या सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ज्यादा अच्छा होता है। खैर कोई बात नहीं, आपने जो कहा है वो भी कोई गलत नहीं है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, तो 1/2 यानी कि हाफ इनटू ये कितनी है बेटा, AC इनटू सम ऑफ टू पैरेलल साइड OA प्लस BD, OA प्लस BD, ठीक है। ओके, AC की वैल्यू कितनी है, कोई मुझे बताएगा? AC की वैल्यू कितनी है? 30. वेरी गुड, ओके, T है, ओके। OA की वैल्यू कितनी है? कोई और बताइए। U. हाँ चलो ठीक है, लेकिन अब जो ये जो BD की वैल्यू है वो निर्णय की कोई और बताएगा बेटा, बताओ। V. V. V, बिल्कुल सही है, V, BD यानी कि ये V, ओके, ये हो जाएगा। आपको फिर से पता है कि हम हमेशा ये एक नियम होता है कि जो फार्मूला हमारे पास ऑलरेडी है तो हम उसका यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि ये थर्ड इक्वेशन मोशन है, दैट मींस इसके पहले हम दो निकाल चुके हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, सो वी कैन यूज फर्स्ट और सेकंड बोथ, बट हियर वी अगेन यूज फर्स्ट इक्वेशन मोशन। देखिए, वी नो दैट फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, पता है आपको, V इज इक्वल टू U प्लस AT, V इज इक्वल टू U प्लस AT, सो V माइनस U इज इक्वल टू AT, और T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A, T is equal to V minus U upon A. Now, लिखिए, now substitute the value of T in above equation. 1/2, T की वैल्यू कितनी है, ये लिखी हुई है, कितनी है, V minus U अपॉन A इंटू V प्लस U, चाहे वो U प्लस V हो और चाहे V प्लस U हो, हम दोनों को लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता होना चाहिए 5 + 2 भी 7 होते हैं और 2 + 5 भी 7 होते हैं। इन दोनों को देख करके किसी को कोई फार्मूला याद आ रहा है क्या? V square minus U square. या A + B इंटू A - B होते हैं A² माइनस V², सो हियर V² माइनस U² अपॉन 2A,
नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, और फाइनली v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as. This is third equation of motion. यहाँ तक कर लो तो बड़ा मुझे याद, मुझे ना बोल दीजिएगा। Done. Thank you. So now, right now we have three equation of motion. मैं उन तीनों को फिर से लिखूंगा सामने आपके। एक बात ध्यान रखना बेटा, तीनों के तीनों इक्वेशन एक ही फार्मूले से ड्राइव हुई हैं। फर्स्ट, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, और थर्ड है v square is equal to u square plus 2as. बच्चों, there is three equation of motion. v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at square, v square is equal to u square plus 2as. ठीक। Now इसमें एक खास चीज है कुछ जो किसी को दिखाई दे रही है क्या? देखो गौर से देखो कि इसमें ऐसा क्या है कि ऐसा क्या है जो तीनों में है? Acceleration. यस, वेरी नाइस, गुड, वेल डन। बेटा देखें आप, एक्सेलरेशन ही एक ऐसी मात्र चीज है जो इन तीनों में है। जैसे पहले वाले में सेकंड में टाइम है लेकिन थर्ड में टाइम नहीं है, सेकंड थर्ड में डिस्टेंस है लेकिन टाइम नहीं है। ऐसे ही किसी में इसको देखते हैं, इसमें फाइनल वेलोसिटी है, इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। तो आप देख सकते हैं, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कॉमन है, वो क्या है? वो है एक्सेलरेशन। मतलब ये हुआ कि यदि एक्सेलरेशन है तो ही ये तीनों इक्वेशंस एप्लीकेबल हैं, अदरवाइज इनका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इन तीनों में खास बात क्या है कि दे आर ऑल फॉर एक्सेलरेटेड मोशन। सपोज a body is moving with a uniform velocity, so right now there is no role of first, second and third equation of motion. कहने का मतलब क्या हुआ? बिना एक्सेलरेशन के ये इक्वेशंस ऑफ मोशन एप्लीकेबल नहीं है। समझ में आया आपको? यदि समझ में आया हो तो यस लिख दो बेटा, थोड़ा सा तो मुझे आगे लग जाए कि हाँ आपको समझ में आ गया। यस, साथ में मुझे आप ये भी बता दीजिएगा। गुड, वेरी गुड। साहब यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से। वो क्वेश्चन ये है कि हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव एक्सेलरेशन पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। Yes, sir. हाँ, तो आपको बेटा मैंने बताया था कि इफ चेंजिंग द वेलोसिटी, यदि किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है, दैट मीन्स वहां पर एक्सेलरेशन डेवलप है। बहुत से बच्चों को क्या गलतफहमी हो जाती है
कि वो ये मानते हैं कि चेंज मतलब इंक्रीज, चेंज मीन्स इंक्रीज, नो, चेंज मीन्स मे बी इंक्रीज और डिक्रीज। कभी भी हम जब बोलते हैं ना कि आई एम चेंजिंग द पोजीशन, तो इसका मतलब ये कभी नहीं होता कि हम आगे ही बढ़ेंगे, हम पीछे भी हट सकते हैं, हम दाएं भी जा सकते हैं, हम बाएं भी, लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, है ना, कहीं भी जा सकते हैं, टू एंड फ्रो, है ना, बैक एंड फोर्थ, कहीं भी। सो इफ यू आर चेंजिंग द पोजीशन, सो यू आर चेंजिंग द वेलोसिटी। तो अक्सर बच्चों को क्या गलतफहमी हो जाती है कि सर, कि जैसे मैंने कहा कि चेंजिंग द वेलोसिटी, तो आपको लगता है कि स्पीड बढ़ रही है, नो, इट मे बी डिक्रीज। बस चेंजिंग मतलब होता है जो पहले थी बस अब वो नहीं होना चाहिए, या तो उससे कम हो जाए या उससे ज्यादा हो जाए। ओके, सो उसे हम कहते हैं एक्सेलरेशन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। ये ध्यान रखना बेटा, ये जो आप देख रहे हैं इसमें एक खास बात है, ये तीनों के तीनों जो फार्मूले हैं, ये हम ये मान के चल रहे थे कि ये सभी में पॉजिटिव है। मान लो किसी में नेगेटिव हो जाए तो फिर आपको यहाँ पर इसको नेगेटिव लिखना पड़ेगा। मतलब यदि मैं ये कहता कि द स्पीड ऑफ द बॉडी इज डिक्रीजिंग विद सो एंड सो, इन दैट कंडीशन प्लस कन्वर्ट इनटू द नेगेटिव। अभी हम जब इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे कि मेरे सामने एक न्यूमेरिकल मुझे दिखाई दे रहा है, तो दिस इक्वेशन, दिस क्वेश्चन सेज, बड़ा ध्यान से सुनना और मुझे बताना कि ये क्या क्या इसमें दिया हुआ है। क्वेश्चन ऐसा है, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, क्या दिया हुआ है, बताइए। क्वेश्चन न्यूमेरिकल से हम लोग सॉल्व करते हैं तो उसमें एक एक शब्द को ढंग से पढ़ना होता है, उसका डायग्नोसिस प्रॉपर होना चाहिए। तो मैं फिर से पढ़ रहा हूँ और मैं जहाँ रुकूंगा वहां पूछूंगा कि इसका मीनिंग क्या है। ओके, अ बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कुछ दिया है इसने, रामा? सर इसका मतलब है कि उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है। वेरी नाइस बेटा, बोलना चाहिए था, तो मुझे नाम लेना पड़ रहा है आपका। जैसे ही उसने कहा है कि जब भी कभी आप ये बोलते हो कि कोई बॉडी रेस्ट से स्टार्ट हुई है, दैट मींस यू कितना है, 0। अब आगे वो क्वेश्चन कहता है एक्सलरेट्स इन अ स्ट्रेट लाइन एट कांस्टेंट रेट ऑफ 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। साफ साफ है, क्या दिया हुआ है आपको, ए दिया हुआ है, फॉर 8 सेकेंड, फॉर 8 सेकेंड मतलब टाइम दिया हुआ है 8 सेकेंड। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बस ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल। क्या निकालना है आपको, एस निकालना है। निकाल सकते हो, जल्दी निकालो, 2 मिनट में। The 96. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। और कोई? Yes, sir, 96. वेरी गुड। कुछ नहीं करना है ऐसे बेटा, आपको पता है ना, S इज इक्वल टू यू टी प्लस
हाफ 90 स्क्वायर, बिल्कुल सही बात है। तो वो इसमें u 0 है तो ये तो हट जाएगा, हाफ है, a की वैल्यू 3 है, 8 की वैल्यू है ना कि 8 आ जाएगा, तो 8 8 से 64 सॉल्व कर लेना, आपको आंसर मिल जाएगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन अभी हमारे पास टाइम है, हम ये भी कर सकते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और करते हैं। नकुल अपना माइक बंद कीजिए। हाँ जी, क्वेश्चन ये है कि अब बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, क्या दिया हुआ है, यू, कि उसने क्या बोल दिया है, अ बस स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्या दिया है उसने आपको, ए फॉर 5 मिनट्स, टाइम दिया हुआ है 5 मिनट्स। सो कैलकुलेट द फाइनल स्पीड एंड डिस्टेंस। दो चीज पूछा है आपसे, जल्दी निकालिए। दो चीज पूछ रहा है आपसे वो, एक वेलोसिटी और एक वो पूछ रहा है कि 5 मिनट के बाद स्पीड कितनी होगी और वो डिस्टेंस कितना कवर कर लेगा। The final speed will be 300 meters per second and the distance covered will be 45 kilometers. 45 किलोमीटर, ठीक है, देखते हैं। और इसका आंसर तो मुझे भी पता नहीं है, मुझे देखना पड़ेगा, फिर भी आप जो कह रहे हैं मैं आपकी बात मान लेता हूँ। 5 मीटर पर सेकेंड और इसका आंसर बनता है 45 किलोमीटर। ओके, वन मिनट्स मोर। चलिए देखो बेटा, मैं इसको पूरा किया हूँ, जिस बच्चों ने नहीं किया उनके लिए। उसमें दो चीज पूछी गई है, एक फाइनल वेलोसिटी पूछी गई है और एक डिस्टेंस पूछा गया है। हमारे पास एक फार्मूला है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यू कितना है, 0 दिया हुआ है, प्लस ए कितना है, 1 दिया हुआ है। अब बात है टी की, ध्यान देना बेटा, ये मिनट्स में है तो आपको इसको सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। तो आप जानते हैं कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं, सो इट विल बी 300, यहाँ आ जाएगा 300। सो आंसर इज 300 मीटर पर सेकेंड। दूसरा उसने पूछा है एस। अब यहाँ ध्यान दो बेटा, अब यहाँ पर एस को निकालने के दो तरीके हैं आपके पास। कैसे, पहला फार्मूला है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इससे भी निकाल सकते हो। और एक फार्मूला आपके पास ये भी है, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। किसी एक का यूज कर सकते हो, हम दोनों को करेंगे, देखते हैं क्या क्या आता है। तो पहले हम इसको लगाते हैं, पहले वाले को v स्क्वायर, v कितना है ये दिया हुआ है, तो 300 होल स्क्वायर, u कितना है 0, प्लस 2 कितना है 2 है,
A कितना है 1 है और ये कितना है S। 3 into 3 9 0000 is equal to 2S. So S is equal to 45,000 मीटर। और आपको पता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है, तो आप उसको ऐसे लिख देना या फिर 45 kilometer. This answer is coming from this equation. Again we use this equation. So here S is equal to U कितना है 0, T कितना है 300 plus half into A means 1 into T means कितना है 300 whole square. Again ये 0 हो जाएगा। S is equal to 90000 upon 2, वही सेम आंसर 45,000 आंसर आता है या और 45 किलोमीटर। So this is the way to calculate the answer, है ना? आप कहीं से भी इसको कर सकते हैं। This is the method. अब आपकी मर्जी है, आप कुछ कभी किसी चीज का यूज कर सकते हैं। So बच्चों, that's all from my side. If you have any doubt or any query, so immediately you can ask me. Otherwise, over to Naveen sir.